Today is World Environment Day. On this day, awareness and action programs are organized to support and protect our environment. For today's session, this is your host Shikha Raj. I welcome all of you on behalf of Regional Science City Lucknow to celebrate awareness about those things that affect the world and the environment. Reimagine, recreate, restore is the objective of World Environment Day 2021 with a special focus on creating a good relationship with nature. World Environment Day was established by UN General Assembly in 1972 in Stockholm, Sweden for awareness and protection of environment. The Environment Day was first celebrated on 5th June 1974 with the theme Only One Earth. This year, the baton has passed to the South Asian country, Pakistan, to host World Environment Day 2021 with the theme Restore Ecosystem. So this year's event will also mark the launch of UN Decade on Ecosystem Restoration from the year 2021 till 2030. Healthy ecosystems and rich biodiversity is the need of the hour to preserve and protect the nature and human beings as well, irrespective of communities, country or religion. Preserving nature is our responsibility as we have only one earth. So take care of your planet. Ecosystem restoration means renewing a degraded, damaged ecosystem through active human actions. Now let's come to the part where we can see what exactly we can do to contribute in the process of ecosystem restoration. Firstly, bring a change in your lifestyle. See how we can live better with nature and make little alterations in our day-to-day actions. Educate other people. This is not a fight we can win alone. Even if we are able to create awareness for a small minority of people, it can create a world of difference. Create awareness among younger generation. Tell them the aspects about nature and the significance of birds, animals, insects, our ecology. Watch movies and documentaries that speak on this subject. In the end, respect biodiversity. Respect nature. Biodiversity plays an important role in offering ecological services that make life livable on Earth. Each species, no matter how big or small, has a mind-boggling impact on the ecosystem. So, take care of nature, cherish your planet, because we don't have planet B. Human health and well-being are intimately linked to the environment, our planet, our Earth. A healthy planet means clean air, sufficient water, and food supplies, including appropriate green cover. These are always essential for our personal health and well-being. The relationship between environment and living beings is one of the interdependence. Each affects the other. Just as our lifestyle habits and choices affect the environment, the health of the planet influences our own health, our communities, our families and economies as well. Therefore, the time is now. Start changing your lifestyle habits from today and make them environment friendly. Keep celebrating World Environment Day
And don't forget, every day is an environment day. So keep connected with nature and cherish your planet. प्रकृति हमारी शिक्षा या व्यवहार का हिस्सा है। आज यही सबसे बड़ी चुनौती है कि हम प्रकृति के नियम को एक नए सिरे से समझें। हमें जानना होगा कि हमारी सीमाएं क्या हैं। किसी भी तरीके की ज़रूरत के लिए हम पृथ्वी पर ही निर्भर हैं। तो हमारे पूरे व्यवहार में और हमारी आदतों में पृथ्वी के संरक्षण की भूमिका होनी चाहिए। हमें अपने पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को समझना होगा और अपनी बदलती प्रकृति पर अंकुश लगाना होगा। प्रकृति और प्रवृत्ति के प्रति हमारी समझ जितनी बेहतर होगी, हम उतना ही अपने इकोसिस्टम को बेहतर बना पाएंगे। आज हम ऐसे संकट में हैं जिसका कोई 100% समाधान नहीं है। प्रकृति ने कोरोना जैसे अदृश्य वायरस को हमारे बीच लाकर यही समझाने और सिखाने का प्रयास किया है कि मनुष्य जनित विज्ञान के प्रयत्न कैसे विफल हो सकते हैं, क्योंकि आज हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हमें इसे संतुलन की तरफ ले जाना चाहिए। ये तभी संभव है जब हम सामूहिक रूप से प्रकृति के नियमों को समझें और अपने बच्चों को शुरू से ही इसकी महत्वता के बारे में समझाएं, उन्हें इसके बारे में पढ़ाएं कि इसकी जीवन में कितनी बड़ी उपयोगिता है। वक्त बता रहा है कि अब सिर्फ सजगता ही नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति एक्टिव मोड में संचालन करने की ज़रूरत है। आज जब मशीनों से ऑक्सीजन स्तर जांचने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ज़रूरी है कि हम गंभीर हो जाएं और अपने प्राकृतिक ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं यानी पेड़ों की अहमियत को समझें। वृक्ष जो प्रकृति का सबसे सुंदर उपहार है, उन्हें लगाएं, उनकी देखभाल करें और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कारण इमली, बेल, जामुन, बेर, शहतूत, शरीफा जैसे पेड़ बहुउपयोगी वृक्ष आज विलुप्ति की कगार पर हैं। अशोक, अर्जुन, शीशम, कदम के पेड़ों के अलावा पीपल, बरगद और पाकड़ जैसे ऑक्सीजन देने वाले पेड़ और पर्यावरण के हितैषी, इनकी संख्या में भी निरंतर कमी होती जा रही है। विकास की दौड़ में हमने ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधों को अंधाधुंध तरीके से काटा। परिणाम स्वरूप हमें ऑक्सीजन प्लांट लगाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। प्रकृति के अन्य प्रहरी जैसे जुगनू, गिरगिट, केचुए, तितली, मधुमक्खियाँ, इनकी भी संख्या निरंतर घटती जा रही है। आज दुनिया भर में लोग ऑक्सीजन पार्क, कार फ्री जोन, कार फ्री सिटीज़ जैसी जगहें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि अगर हमें पृथ्वी पर रहना है तो यही सबसे ज़रूरी है। समय रहते अगर हम पर्यावरण को बचा लें तो ही हमारा जीवन सफल होगा। तेज लिया सूरज से हमने, चाँद से शीतल छाया। तेज लिया सूरज से हमने, चाँद से शीतल छाया। टिमटिम करते तारों की भी समझ गए हम माया। चिड़ियों से है उड़ना सीखा, तितली से मुस्काना। चिड़ियों से है उड़ना सीखा, तितली से मुस्काना। भंवरों की गुंजन से सीखा, राग मधुरतम गाना। सागर ने सिखलाई हमको गहरी सोच की धारा। गगनचुंबी पर्वत से सीखा वो ऊंचा लक्ष्य हमारा। एक सबक देता है झरना, कल कल करते बढ़ते जाना। एक सबक देता है झरना, कल कल करते बढ़ते जाना। पथ में जो बाधाएं आए, निर्भय हो उनसे टकराना। इतने सारे पाठ प्रकृति हमको दिन रात सिखाती है। कितने ही उपहार हमें ये धरती माँ दे जाती है। कितने ही उपहार हमें ये धरती माँ दे जाती है। प्रकृति के कण कण में है सुंदर संदेश समाया। ईश्वर ने इसके द्वारा जो अपना रूप दिखाया। आँख खोलकर इनको देखें और इन पर हम गर्व करें।
आँख खोलकर इनको देखें और इन पर हम गर्व करें। धरती माँ की पीड़ा समझें, अपना समय हम व्यर्थ करें। धरती माँ की पीड़ा समझें, अपना समय हम व्यर्थ करें। क्यों ना मिलकर करें प्रयास हरियाली और खुशहाली का। सत्य यही है, यही मार्ग है जो उन्नति के पथ तक जाता। सत्य यही है, यही मार्ग है जो उन्नति के पथ तक जाता। हमको इस धरती पर कैसे रहना ये सिखलाता। हमको इस धरती पर कैसे रहना है ये सिखलाता।